ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ 24/7 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਤੇ। ਮੈਂ ਅਮਨ ਚੋਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟੌਪਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ MCQs ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਮੋਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੇ MCQs ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਲਈ ਉਹ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਓ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, the displacement of the object can be, ਵਿਸਥਾਪਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਤਲਬ ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਕਾਰਾਤਮਕ, ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ all of these ਮਤਲਬ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਬੱਚੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ A ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੂਵ ਕੀਤਾ A to B ਕਿੰਨਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ B ਤੋਂ A ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ C ਨੂੰ, ਦੇਖੋ 10, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ -10 ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਆਂਸਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ A ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ A ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ which of the following statement are right, ਮਤਲਬ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, A ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ both speed and velocity are same, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗਤੀ ਅਤੇ ਵੇਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਪੀਡ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਗਤੀ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਵੇਗ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਦਰ ਨੇਮ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਵੇਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ, ਡੀ ਹੈ ਨॉन यूनिफॉर्म मोशन। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਬਟ ਉਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਰੋਂਗ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ DEC, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਡੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਂਦਾ ਹੈ a particle is moving in a circular path of radius r, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਜਿੰਦਾ r ਕੀ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਿਕਾਲਣੀ ਆਫਟਰ ਹਾਫ ਆ ਸਰਕਲ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਰਾਉਂਡ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ 0, πr, 2r ਜਾਂ 2πr।
तो जी हाँ दोस्तों, तुहाडे आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ रहे हैं, जो है 2r, बिकॉज आपां ये चीज सीखी सी कि जेड़ा डिस्प्लेसमेंट जदों अद्धे राउंड तो बाद कितनी बनती 2r बनती है, ते एक कंप्लीट राउंड के बाद कितनी बनती है 0 बनती है। अगला तुहाडे अगे स्क्रीन के उत्ते आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। हेठां विचों किहड़ी है जी ऑप्शन है जिंदे तो आपां नूं ओंदी मैग्नीट्यूड मतलब किन्ने ओंदा मैग्नीट्यूड दे नाल नाल ओंदी डायरेक्शन भी मिलती है। तो उनका सीधा ही आंसर आंदा जो है वैक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इहो जी क्वांटिटी जिंदे विच अपने कोल मैग्नीट्यूड तो होवे नाल दे नाल उनका डायरेक्शन भी दिती होवे, तो उन्होंने आपां कहने हैं वैक्टर क्वांटिटी। आ वाला क्वेश्चन बच्चों निकालो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ईजी भी है। अ वर्कर covers a distance of 40 km from his house to his place of work। एक मजदूर अपने घर तो जिथे भी उनका काम का स्थान सी उत्थे तक वो जाता है किन्ने किलोमीटर 40 किलोमीटर तक। ठीक है जी, ते जदों वो मकान च वापस आता है तो कितना किलोमीटर आता है 10 किलोमीटर आता है। ठीक है जी, then the displacement covered by him। तो ओवरऑल तुसी विस्थापन निकालना, सीधी सी चीज आ है जिन्हों शॉर्टकट च आपां लिखीए। आ मजदूर दा मकान सी ते ये हुंदी जिथे भी वो उत्थे रहिंदा सी या जिथे भी उनदा काम वगैरह हुंदा सी। ठीक है जी, तो इहदा वो कहंदा 40 किलोमीटर पहले इधर जांदा सी, फिर कोई जो वापसी देंदा कोई होर कोई निक्का रस्ता होना है तो उनदे चों किन्ना आंदा सी, वो आंदा सी वापस किन्ना 10 किलोमीटर। ठीक है जी, तो 40 हुण ओपोजिट आया तो माइनस लगेगा। ठीक है जी, जे इस तो अगे आंदा तो वो ऐड हो जाना सी, हुण ऐड ही हो रहा है बट ओपोजिट दे विच आ रहा है, तो इस करके अगे की लगेगा माइनस लग जाएगा। तो कितना आंसर आएगा 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर उनकी की आ जाएगी विस्थापन आ जाएगा अपने को, सी ऑप्शन राइट आंसर। जी हाँ बिल्कुल ठीक आंसर है। अगला अपने को आ गया 7th क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 40 मीटर इन 5 सेकंड, तो उसके बाद 80 मीटर इन अगेन 5 सेकंड। एक कोई वस्तु है वो जेड़ा फर्स्ट 40 मीटर है ओनू आंदी उन्नी यात्रा वास्ते उन्होंने कितना टाइम लगता है 5 सेकंड, ते अगली जेड़े 80 मीटर है उनदे वास्ते उन्होंने कितना लैंदा है 5 सेकंड लैंदा है। आपां उनदी ओवरऑल औसत स्पीड निकालनी है। ठीक है जी, एवरेज स्पीड कितनी हुंदी है तुहानू अगे भी सिखाया सी, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो देखो पहला जेड़ा कितना देता डिस्टेंस 40, सेकंड कितना 80, इनवर्ड हो जाएगा 40 प्लस 80 कितना होता है 120, थल्ले 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, 0 न 0 कट्टी गई, तो एवरेज स्पीड का आंसर कितनी आ गई ए ऑप्शन, दैट इज 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सब तो इजी, एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब प्रवेग दे माप दी इकाई की है, मतलब एक्सेलरेशन आपां किंदे विच निकालदे हां। तो ऑप्शंस अपने कोल इजी ने इत्थे, ऑप्शन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर आवर या मीटर इनटू सेकंड। तो जी हां सीधी सीधी इनदी ऑप्शन है जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला अपने कोल आंदा है हेठ लिखियां विचों इकसार गति लई सही ग्राफ है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जैक्ट ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। इन्हां विचों एक ऐसा ग्राफ है जिंदे तो अपने को यूनिफॉर्म मोशन मिल रहा है, तो वो सीधा सीधा तुहानू विक रहा है, तुहानू सिखाया भी सी। डी आंसर आएगा इनदा, राइट आंसर डी है। इनदा एक ही रीजन है याद रखने का, तुहानू जिथे वर्ड यूनिफॉर्म आ जाए मतलब की होएगी उत्थे हमेशा एक रेखा होएगी, और रेखा की होनी चाहिए बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जे और रेखा सीधी नहीं आती तो मतलब वो की होएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आ वाला ए ऑप्शन भी, बी भी ते आ भी, ये सारे की ने नॉन यूनिफॉर्म मोशन ने। आज दा अपना लास्ट लेके आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट एन इक्वेशन ऑफ मोशन। हेठ लिखिया विचों हेड़ा गति दा समीकरण नहीं है, केड़ी इक्वेशन ऑफ मोशन रॉन्ग लिखी हुई है इहदे विच। तो तुहानू एंड ते मैं आख्या सी तुसीं पहले लेक्चर दे विच इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखनी है, तुहानू सिर्फ यूज होनी है।
ठीक है जी। तो इनका आंसर सीधा सीधा है v इज u -80 नहीं हुंदा, वो एडिशन हुंदा उत्ते, मतलब डी ऑप्शन सही सी तो ए ऑप्शन रॉन्ग है, ए आंसर अपना इत्थे आंसर बन गया। तो बच्चों ये सी अपने कुछ जिन्ना अपना पहला लैक्चर हो चुका है उनदे विचों, ठीक है जी। फर्स्ट सैकेंड जिन्ना अपने लैक्चर हो चुके ने उनदे विचों जेडे इंपोर्टेंट सी वो अज इन्ने को आपां रखते हैं। ते इस दे नाल ही हुण अपना अगला जो टॉपिक पिछला बाकी थोड़ा जिहा बच गया सी वो होएगा, ठीक है जी। ते अगले लैक्चर दे विच आपां जेड़ा कंप्लीट टॉपिक है उनदे ते फिर आपां की लैके आवांगे वधिया जे एज ही MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। तो आ जाओ आपां की करदे हां अगला चैप्टर स्टार्ट, या अगला जेड़ा इहदा बच गया हिस्सा वो वाला स्टार्ट हो रहा है। तो यह चीज तुहानूं सिर्फ याद रखनी हुण इहदे विच बहुत ईजी टॉपिक है। पहला टॉपिक आंदा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हुण डिस्टेंस टाइम ग्राफ नूं आपां ST ग्राफ भी लिखदे हां। हुण कुछ बच्चे इत्थे की हो जांदे ने कंफ्यूज हो जांदे ने कि उत्थे लिखा है ST ग्राफ, ST दा मतलब स्पीड टाइम नहीं हुंदा, ST दा मतलब हुंदा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है जी। तो फर्स्ट अपने को आ रहा है जे कोई ऑब्जेक्ट रुकिया होवे तां उनदा जेड़ा डिस्टेंस टाइम रिप्रेजेंटेशन आएगी वो की हुंदी है, वो एक स्ट्रेट लाइन होएगी जेड़ी किंदे विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है जी। तुहानूं एग्जाम विच की आएगा हेठां लिखियां विचों, जिवें हुणे एक एग्जांपल भी आपां कीती सी कि हेठ लिखियां विचों जेड़ा यूनिफॉर्म मोशन हैगा उनदी आपां पहचान होनी सी, उवें तुहानूं इहदे विच भी की आएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ जेड़ा है उनदे विच जे कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तां उनदा आ ऑप्शन राइट हो जाएगा, या तुहाडे कोल आ चीज होएगी उनदा आंसर पूछा होएगा। इत्थों की पता लगदा है ऑब्जेक्ट कि रुकिया होया है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड दे विच है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे विच है, जो भी कुछ भी लिखिया होवे तां तुहानूं सिर्फ इहदा मतलब याद करना है। जे कोई एवें दा फोटो मिलदी तुहानूं तां मैं सिर्फ इत्थे चीज एक्सप्लेन हो रही है ST ग्राफ, ST बोले तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है जी। तो उनदे विच की हुंदा है कि जे कोई लाइन टाइम दे की हुंदी है पैरेलल हुंदी तां उहदा मतलब ऑब्जेक्ट रुकिया होया है, बिकॉज तुहानूं सिंपल ही तुसीं अंदाजा ला सकदे हो जदों टाइम 0 सैकेंड सी उदों डिस्टेंस कितना सी 25, आ ऊपर भी लिख रखिया है। जदों 1 सैकेंड होया 2 होए या एक एक करके इंक्रीज हो रहे तो जेड़ा उनदा डिस्टेंस वो की रह रहा है इक्को वर्गा, इस करके नूं आपां कहने आ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट दी एक ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है जी। नेक्स्ट आंदी है जे कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड दे नाल की हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, मतलब इत्थे की होया देखो लिखिया होया इत्थे जदों t 0 सैकेंड सी, जदों टाइम 0 सी दा डिस्टेंस भी कितना सी 0 सी, टाइम 1 सैकेंड हो गया तो वो कितना इंक्रीज हो गया 1 0, जदों फिर 1 सैकेंड और इंक्रीज किया तो अगेन जेड़ा इंक्रीज हो रहा है की हो रहा है इक्को वर्गा हो रहा है, इत्थे भी उन्ना इंक्रीज होया, इत्थे भी उन्ना इंक्रीज होया ते अगे भी फिर सेम इंक्रीज हो रहा है। जदों भी सेम इंक्रीज हुंदा उहनूं आपां कहने आ यूनिफॉर्म। ते हुण आपां नूं इह चीज भी पता है कि स्पीड बटा जेड़ा टाइम सॉरी डिस्टेंस बटा t हुंदा उहनूं ही कहने आ स्पीड। तो इत्थों अपने को की निकलदी है इस लाइन तो की मिलदा अपने को यूनिफॉर्म स्पीड मिलदी है। जे कोई लाइन ST जेड़ा ग्राफ है डिस्टेंस टाइम जेड़ा ग्राफ है जे लाइन बिल्कुल की होवेगी सीधी तो उहदे तो की मिलेगी स्पीड मिलेगी, उस स्पीड नूं आपां की लिखांगे यूनिफॉर्म स्पीड। तो पेपर के अंदर की आएगा तुहानूं जेड़ा आ नीचे दिता गया है रिप्रेजेंटेशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ दी उत्थों की पता लगदा है ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्टेशनरी, तो ऐदा दे तुहानूं ऑप्शन आणगे, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो की है एक ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड दा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन दा, बट उनदे विच भी दो अलग-अलग हुंदे है, या तो स्पीड की हो सकती है अचानक इंक्रीज हो सकती है या की हो सकती है डिक्रीज हो सकती है। तो ये जेड़ा है ये है एक्सेलरेटिंग, एक्सेल दा मतलब हुंदा है इंक्रीज होना, ठीक है जी। फिर फॉर एग्जांपल इत्थे देखो तुसीं 1 सैकेंड दे विच कितना इंक्रीज कीता, फिर 15 इंक्रीज हो गया, फिर 20 हो गया, मतलब अचानक इंक्रीज हो रही है स्पीड, मतलब एक ये एक्सेलरेटिंग दा ग्राफ है। बट एक की रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म, बिकॉज जेडी स्पीड है वो जेडी स्पीड इक्वल अगे हुंदी सी हुण की अनइक्वल इंक्रीज हो रही है, ठीक है जी। तो जे स्पीड की करेगी डिक्रीज तो आपां कहांगे डी एक्सेलरेटिंग दा डिस्टेंस टाइम रिप्रेजेंटेशन है,
ठीक है जी। तो ये सी अपने डिस्टेंस टाइम दे कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट्स। तो ये अपना ओवरऑल तुसी इहदा स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे 3 इंपोर्टेंट रिजल्ट याद रखने हैं तुसी। एक्सेलरेटिंग या डीएक्सेलरेटिंग तुहानू एग्जाम विच नहीं आवेगा, तुहानू सिर्फ आवेगा कि ये जिहड़ा ग्राफ है तो की पता लगता है या यूनीफॉर्म स्पीड दा इन्हां जिहड़ियां ऑप्शनां दित्तियां होईयां इन्हां विचों सही आंसर की होएगा। तां सिंपल जी चीज है, यूनीफॉर्म का मतलब आ गया हमेशा की रहेगी वो एक सीधी लाइन होगी। नॉन यूनीफॉर्म का मतलब वो लाइन जी होगी वो उबड़ खाबड़ जी होगी। तो स्टेशनरी का मतलब वो लाइन हमेशा की होगी जेड़ा अपना टी एक्सिस है, टी बोले तो टाइम एक्सिस उनके हमेशा पैरेलल होएगी। ठीक है जी। ये आंदे 3 इंपोर्टेंट रिजल्ट ने, तुसीं इहदा स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। इस तो इलावा इहदे रिजल्ट्स होर इंपोर्टेंट ने, वो की हुंदे ने आ वेख लो। फर्स्ट इहदा रिजल्ट हुंदा है एरिया अंडर एसटी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस। हाँ इहदा मतलब की है जे मैं तुहानू आ आखां कि इहदी हेल्प नाल तुसीं मैनू इहदा की निकाल के दिओ, स्पीड कट के दिओ या कुछ भी निकाल के दिओ, तो उनके वास्ते रिजल्ट याद रखने जरूरी ने। तो इहदे कितने रिजल्ट ने? पहला रिजल्ट आंदा है कि जिहड़ा इहदे नीचे वाला एरिया होएगा, आज जे आप एरिया सारा निकालीए तो आ एरिया का मतलब आ एरिया का जो आंसर आएगा वो किंदे इक्वल होएगा? उनके डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दे इक्वल हुंदा है। इहदे जिहड़ा नीचे एरिया आएगा वो भी, इहदे जिहड़ा नीचे आएगा वो भी। हुण देखो इहनू तो आपां निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं सिर्फ किंदा या तां यूनीफॉर्म मोशन दा या जिहड़ा ऑब्जेक्ट रुकिया होया है। ठीक है जी। तो ये आपां निकालना नहीं है, एग्जाम में कुछ नहीं है जाना, तुहानू सिर्फ इहदा रिजल्ट याद रखना है। सैकेंड रिजल्ट इंपोर्टेंट है जिन्होंने आप कहने स्लोप अंडर एसटी ग्राफ। हुण इहदा मतलब की होया? स्लोप का मतलब हुंदा कितनी ऊंचाई ते है, एंगल ते। ठीक है जी। ये आपां हुंदा इहनू आपां कहने स्लोप, मतलब ऊपर वाई एक्सिस वाला, नीचे एक्स एक्सिस वाला। हुण आपां गल कर रहे हैं सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ दी, तो इत्थे लिखिया स्लोप अंडर एसटी ग्राफ। एसटी मतलब ऊपर की है डिस्टेंस, नीचे की है टी। हुण आपां नू पता है जे ऊपर डिस्टेंस नीचे टी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ स्पीड तक आखते ਆਪਾਂ, इस करके ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ रिजल्ट है की आएगा? स्पीड आएगा। ठीक है जी। स्पीड ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ की आएगा? रिजल्ट है। मतलब ਆਪਾਂ याद करना है ਜਿਹੜਾ एंगल बनता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ रिजल्ट की बनता है? स्पीड बनता है। ਤੇ ਉਹ आया उनके आन का रीजन की मैं तुहानू हुणे एक्सप्लेन किया, बिकॉज स्लोप का मतलब हुंदा जिहड़ा उपर वाला है ते जिहड़ा नीचे वाला है उन्हां दी रेशो। तो ऊपर की है डिस्टेंस, नीचे की है टी, तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज स्पीड। तो अपना तुसी आ रिजल्ट याद रखने हैं, तो इन्हें तुसी स्क्रीनशॉट लैके रख लो, ये बहुत ज्यादा लाजमी है। नैक्सट अपने को आंदा है स्पीड टाइम ग्राफ या अपन कहने हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो ताड़ा मैं इन्ना समय वेस्ट नहीं होएगा, उस हिसाब नाल ही मैं ये चीज तुहानू समझा रहा। तुसी सिर्फ इहदियां अखां नाल वेखना ही है कि इत्थों की पता लगता है। ठीक है जी। हुणे तुहानू जिहड़ी चीज पिछे सिखाई हो किसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे विच जे कोई लाइन टाइम दे की हुंदी है पैरेलल हुंदी है, तो वो की होएगा? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होएगा आ वाला। ठीक है, ये वाला हुणे होया है। बट हुण आपां गल कर रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ दी, तो मतलब नीचे दा ही लवांगे, बट इत्थे हुण अगे जिहड़ा आपां डिस्टेंस लैंदे सी इत्थे हुण की लवांगे? स्पीड लवांगे। ठीक है जी। तो जे देखो स्पीड की आ रही है इको वर्गी, तुहानू आपां कहांगे उनदी की है? सेम स्पीड है। सेम स्पीड दा एक ही शो कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन है, या अपन कहने विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट स्पीड, या सेम स्पीड वास्ते जिहड़ी ऑप्शन दित्तियां गई हैं इन्हां विचों कोई सही ऑप्शन टिक लगाओ। तो आ वाली जिहड़ी ऑप्शन वो बिल्कुल सही हो जाएगी। ते जे आपां गल करिए यूनीफॉर्म एक्सेलरेशन दी, वो की हुंदा है? जदों स्पीड टाइम ग्राफ दे विच तुहानू अगे भी कहा हमेशा सीधी लाइन का मतलब की है? यूनीफॉर्म है। ठीक है जी। जे तां इत्थे हुंदा डिस्टेंस टाइम ग्राफ तां इत्थे आंसर आंदा यूनीफॉर्म स्पीड। हुण अगर स्पीड टाइम ग्राफ तां फिर आंसर आएगा एक्सेलरेशन। उनका रीजन की है? तो देखो ऊपर की पे है की स्पीड, नीचे की पई है टाइम, तो स्पीड पर यूनिट टाइम की हुंदा है? एक्सेलरेशन हुंदा है। इस करके आपां उहनूं यूनीफॉर्म एक्सेलरेटिंग आखदे हां।
तो इहदे भी रिजल्ट उदा ही ने कि फस्ट इहदा रिजल्ट आता है, इहदा जो एरिया निकालांगे इहदे अंदरला एरिया वो अगेन किंदे इक्वल होएगा, एरकी फिर तो डिस्टेंस दे ही इक्वल होएगा, चाहे डिस्टेंस टाइम ग्राफ होवे, चाहे स्पीड टाइम ग्राफ होवे, चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ होवे, एरिया जिहड़ा हुंदा है उनका रिजल्ट हमेशा की रहिंदा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्को ही गल है। ते सैकंड रिजल्ट इंपोर्टेंट है, स्लोप जिहड़ी एसटी ग्राफ दी सी, जिहड़ी डिस्टेंस टाइम दी सी, उनका रिजल्ट आंदा सी स्पीड, ते जिहड़ा स्पीड टाइम ग्राफ दा स्लोप हुंदा है उनका रिजल्ट आंदा है एक्सेलरेशन। मैं हुणे तुहानूं एक्सप्लेन कीता, ऊपर रखना है, जो चीज ऊपर है उन्हें ऊपर रखो अपॉन टी, तो स्पीड अपॉन टी एक्सेलरेशन हुंदा है, तो इहदा आंसर एक्सेलरेशन बन जाएगा। तुसीं इस वे नाल भी याद रख सकते हो, पहला आपां कीता टॉपिक डिस्टेंस दा, फिर किया आपां स्पीड दा, फिर आपां किया एक्सेलरेशन दा। जो आपां इहदा बनावांगे ग्राफ तो आंसर आएगा स्पीड, जो आपां इहदा बनावांगे ग्राफ स्पीड दा तो उस तो अगली अपना जिहड़ा आंदा टॉपिक हुंदा वो आंसर बन जाता है। ठीक है जी, तुसीं इस वे नाल भी इहदे आंसर याद रख सकते हो, तो ईजी है मैनूं लगदा है। नैक्सट आंदा है इहदी एक एग्जांपल, तुहानूं ये कुछ मैं सिखाण दा मतलब मकसद की है वो वेख लो तुसीं। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ एग्जाम ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਅਟਪਟੀ जी फिगर आ गई है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ आंसर लिखना है। फर्स्ट अपने को क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द इनिशियल स्पीड, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है जी, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ पहचान होनी कि स्पीड टाइम, आ देखो ਇੱਥੇ ਕੀ लिखी हुई है स्पीड, नीचे लिखा हुआ है टी, टी बोले तो टाइम। ठीक है जी, तो एक ये स्पीड टाइम ग्राफ है। पहला उन्हें पूछ लिया कि सानू इहदा आंसर दिओ कि व्हाट इज द इनिशियल स्पीड, स्टार्टिंग ते स्पीड कितनी सी, स्टार्टिंग इत्थों हो रही है इहदी, स्टार्टिंग ते कितनी स्पीड लिखी हुई है 10, ते नाले आ विच लिखी अपनी जिहड़ी स्पीड ओ किंदे च हैगी किलोमीटर पर आवर दे च लिखी है, तो इहदा आंसर आ गया 10 किलोमीटर पर आवर इहदा इनिशियल स्पीड हो गई। ठीक है जी, सेकंड वो आंदा है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार, कितनी मैक्सिमम हुई है स्पीड, आ वेख लो कितनी हुई है 35 दी, 35 दी तो हुई है स्पीड, उस तो बाद तो उत्ते किते आंदा ही नहीं पिया, तो इहदा आंसर आ गया 35 किलोमीटर पर आवर। अगला, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शो जीरो एक्सेलरेशन, हुण बच्चों एक्सेलरेशन मतलब क्या होंदा, इंक्रीज होना, इत्थे एक्सेलरेशन हो रही है, हाँ जी सर हो रही है, बिल्कुल हो रही है, बट इत्थे एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं रही, बिकॉज जेडी लाइन टी एक्सिस दे पैरेलल हो जाती है मतलब ऑब्जेक्ट सेम स्पीड ते है, रुकिया होया है, मतलब जीरो एक्सेलरेशन लई अपने को आंसर आ गया बीसी ग्राफ। ठीक है, लाइन जेडी हैगी है बीसी, उत्तों की पता लगता है इत्थे की है कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रही, वो जिहड़ा ऑब्जेक्ट है वो सेम स्पीड ते आ रहा है। अगला, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब स्पीड दा डिक्रीज होना, मतलब एक्सेलरेशन जिहड़ी ओकी होवे उल्टा, हुण देखो इत्थे तां इंक्रीज हो रही स्पीड, इत्थे इक्को वर्गी ते इत्थे की हो रही डिक्रीज, तां जिहड़ी लाइन अपने कोल हैगी है सीडी उत्तों की मिलदी है अपने कोल रिटार्डेशन मिल रही है। ठीक है जी, लास्ट देखो इंपोर्टेंट है, जिहड़ा मैं तुहानूं रिजल्ट सिखाया है वो इत्थे यूज हो रहा अपने कोल, वो वेखो की है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन, इत्थों लैके 8 आवर तक, इहदे विच वाला की निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। हुण तुसीं सोचोगे कि सर अपने कोल तां हैगा स्पीड टाइम ग्राफ ते जिहड़ा आपां निकालना है डिस्टेंस, तो उहदे वास्ते बच्चों तुहानूं मैं पिछला रिजल्ट याद रखवाया सी कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ या एरिया अंडर एसटी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब जे आपां इन्ने हिस्से दा एरिया निकाल दईए तो वो किंदे इक्वल होएगा, डिस्टेंस दे इक्वल होएगा। हुण एक टाइप दा रेक्टेंगल ही है, इहदी हाइट कितनी है, हाइट अपन को तो पता लगेगी आ वाले निशान तो एक एन मार्क कितना है 35 दा, ये हाइट होगी। आ चीज कितनी है, आ 8 है, आ कितना एन है, 8 च 3 गया 5, तो 35 गुणा 5 एल इंटू बी हुंदा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की हुंदा है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 35 गुणा 5, 5 5 25 2 ऊपर गया, 5 3 15 2 17, 175 मीटर इहदा आंसर आ गया। ठीक है जी, ऐसे लिए मैं तुहानूं इहदे रिजल्ट सिखाए सी, तुसीं इहदा स्क्रीनशॉट लैके रख सकते हो। मैं इहदे आंसर एक बार होर तुहानूं आखदे आ, लिख रहे हैं इत्थे, पहले दा आया सी 10 किलोमीटर, सैकेंड दा 35 हाईएस्ट स्पीड हुई है,
जीरो एक्सेलरेशन किन्ने शो की है, एस लाइन ने, बीसी लाइन ने। रिटार्डेशन किन्ने शो की है, लाइन जी लास्ट वाली है सी डी, ते एंदा आंसर आया सी किन्ना डिस्टेंस 175 मीटर। तो ये तुहाडे आंसर ने, तुसीं इहदा स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है जी। अज का अपना लास्ट टॉपिक बचदा हुआ है व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब जदों कोई चीज सर्कल विच मूव हुंदी है तो उहनूं आपां कहने इट इज इन द सर्कुलर मोशन। ठीक है जी। ता द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ उहनूं आपां कहने सर्कुलर विच है। बट जे वो सर्कल दे विच सेम स्पीड नाल मूव हुंदा है, if the motion of the body is moving with constant speed along a circular path तो उहनूं आपां कहने आ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है जी। तो इहदी तुसीं एग्जांपल भी वेख सकते हो। एक लाइन इत्थे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट जिहड़ी एग्जाम विच आंदी है, की आंदी तुहानूं ये नहीं आना व्हाट इज यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हुंदा, ये नहीं आना तुहानूं एग्जाम विच। तुहानूं जिहड़ी चीज आनी वो है स्पीड की हुंदी है, इहदे च सेम रहिंदी है, ऐसे करके इहनूं की कहने आ यूनिफॉर्म। बट जिहड़ी की वेलोसिटी है की हुंदी रहिंदी है वार वार चेंज हुंदी रहिंदी है। देखो इत्थे हुंदी जिहड़ी वेलोसिटी उहदा मूव इस पासे है, इधर नूं मूव आएगा तो उहदा इस पासे हो जाएगा, इधर आएगा नीचे नूं। मतलब हर एक बिंदु ते सर्कल दे हर एक हिस्से ते वेलोसिटी दी वैल्यू की हुंदी है चेंज हुंदी है। क्यों? बिकॉज जिहड़ा इहदा मूव है मतलब इहदी जिहड़ी डायरेक्शन हुंदी है वेलोसिटी पार्टिकल दी की हुंदी रहंदी है हर एक हिस्से ते चेंज हुंदी रहंदी है। इस करके वेलोसिटी की हुंदी रहंदी चेंज हुंदी रहंदी है, स्पीड की रहंदी है सेम। तो पेपर सीधा की आएगा which of the following will remain same in uniform circular motion। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਆਣਗੀਆਂ स्पीड सेम रहेगी, वेलोसिटी सेम रहेगी, एक्सेलरेशन वगैरह इदां दी ਆਪਸ਼ਨ ਆਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ स्पीड सेम रहेगी, वेलोसिटी हर एक ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ चेंज ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ठीक है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ अर्थ अपनी किंदे आले दुआले घूमदी है सूरज दे, ते अपनी अर्थ दे आले दुआले की घूमदियां ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिहड़ियां आपां लाईयां होईयां ने। तां आर्टिफिशियल सैटेलाइट दा जिहड़ी की करदियां अर्थ दे अराउंड घूमदियां ओ इहदी एक एग्जांपल है किंदी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दी। नैक्सट अपने कोल एग्जांपल है इलैक्ट्रॉन जिहड़े की करदे न्यूक्लियस दे आसे पासे रिवॉल्व हुंदे है। ठीक है जी। न्यूक्लियस अंदर फिक्स है, इलैक्ट्रॉन होंदे की होंदे आसे पासे घूमदे हैं। तो वो भी किंदी एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दी। अगली एग्जांपल है मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ विंडमिल। ठीक है जी। तुसी ये चीज तुहाडे आ चुकी होएगी। इहदे नाल हेल्प नाल आपां की करदे एनर्जी जिहड़ी हवा तो एनर्जी मिलदी है उहनूं आपां कहने आ उस वास्ते जिहड़ी चीज आ चीज लगी हुई है इहनूं आपां कहने आ विंडमिल। ठीक है जी। ते इहदे जिहड़े आ चीजां ने एक ही हुंदे इहदे आसे पासे हुंदे कि ने रोटेट हुंदे रहंदे है। ये भी इहदी एग्जांपल बन गई। लास्ट एग्जांपल सब तो वधिया द टिप ऑफ सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच विद सर्कुलर एक्सिस शोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब जिहड़ी भी अपनियां मिनट वाली सुई होगी, सेकंड वाली सुई होगी, आवर वाली सुई होगी, ये सारी एक एक्सिस उत्ते की हुंदे इकट्ठियां हुंदियां उस एक्सिस दे आले दुआले की हुंदियां रहंदियां एवें एवें रोटेट हुंदियां रहंदियां। मतलब ये भी यूसीएम दी एग्जांपल है। यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हुण बच्चों एक चीज इंपोर्टेंट की तुहानूं इन्ना कुछ सिखाण दे पीछे दा मकसद की है आ चीज कि तुहानूं वेलोसिटी निकालनी आनी चाहिए है जे कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन दे विच हुंदा है। मान लो आर किसी सर्कल दा रेडियस है तो इहदा आपां नूं पता है जिहड़ा सर्कमफ्रेंस होएगा कितना होएगा 2 पाई आर होएगा। हुण आपां नूं पता जिहड़ी वेलोसिटी हुंदी है की हुंदी है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। हुण इत्थे जिहड़ा एक राउंड दे विच जिहड़ा डिस्टेंस होएगा किंदे इक्वल होएगा सर्कमफ्रेंस दे इक्वल होएगा। तो v की हो गया सर्कमफ्रेंस पर यूनिट टाइम। हुण सर्कमफ्रेंस आपां निकाला है 2 पाई आर। तो v दी वैल्यू जदों आपां सर्कुलर मोशन विच निकालनी है तो हमेशा अपना ये बन गया नवा फॉर्मूला की बनया v = 2 पाई r by t। तो ये अपना की करना है हमेशा यूज होएगा टू फाइंड वेलोसिटी जदों कोई ऑब्जेक्ट किंदे च होएगा सर्कुलर मोशन दे विच होएगा। हुण कुछ बच्चों के दिमाग विच ये भी आएगा कि सर स्पीड नहीं निकाल सकते,
सिर्फ ਆਪਾਂ वेलोसिटी निकाल सकते हैं ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ बट ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੀਡ ਆਪਾਂ नहीं निकालते किंदे विच सर्कुलर मोशन दे सिर्फ की निकालते हैं वेलोसिटी एंड दी आप लास्ट एक आप एग्जांपल लेके आ रहे हैं इफ होए मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर कोई मुंडा है वो सर्कुलर पाथ विच घूमदा है जिंदा रेडियस कितना है 7 मीटर है तुसी वेलोसिटी करनी निकालनी है इन 11 सेकंड्स ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ देखो सिंपल जिहा r 7 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है t ਦਿੱਤਾ 11 सेकंड वेलोसिटी निकालनी है ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ v ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 pi r by t ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ 2 into ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 22/7 22/7 ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੂੰ ਲਿਖਨੇ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਪਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ 7 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ 11 ਤਾਂ ਦੇਖੋ 11 ਤੇ ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 7 ਤੇ 7 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 2 ਗੁਣਾ 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी कितनी बन गई 4 मीटर पर सेकंड चलो दोस्तों आज का टॉपिक अपना ओवर हो गया इत्थे खत्म हो गया पहला चैप्टर जेड़ा अपना सी दैट इज रेस्ट एंड मोशन वाला टॉपिक खत्म हो गया हुण अगला टॉपिक जेड़ा होएगा उस तो पहला मैं तुहाडे नाल पहला अपना सुबह एक लेक्चर आएगा जेड़ा कि सिर्फ ते सिर्फ मोशन टॉपिक दे जिन्ने भी इंपोर्टेंट एग्जाम विच एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ चुके ने वो होणगे जदों वो कंप्लीट हो जाएगा फिर आप अगला टॉपिक लेके आवांगे उनका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन उनका आप अगे तो इदा रखांगे रोज दे नाल टॉपिक दे समझाण तो नाल दी नाल तुहाडे की लिते जाणगे उनदे ते बेस ते एमसीक्यू हर रोज होंगे तुहाडे तो इस गल दी चिंता ना रखो कि सर सानू ये आंदा तो है चैप्टर बट सानू सिर्फ एमसीक्यू ही इंपोर्टेंट नहीं तुहानू चैप्टर भी समझना जरूरी है ते जे तुहाडी इच्छा होवेगी तो असीं फिर उस अकॉर्डिंग भी तुहाडे नाल वीडियो लेके आवांगे तां तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया साडे नाल आउण लई तां थैंक यू सो मच मिलदे आपां अगले लेक्चर विच टाटा सी यू बाय बाय।